I'm just going to deal with the last case of your topic 1, and that is Ram Javaya Kapoor versus Union of India. हाँ जी, राम जवाया कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसको जरा अच्छे से समझना. दिस केस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड it is little bit technical also, but obviously it is not very difficult, so you can easily understand what exactly I'm trying to tell you. So Ram Javaya Kapoor versus State of Punjab. The citation of the case is AIR 1955 SC 549. SC 549. तो इसको आप ऐसे समझना कि जैसे आप सब लोग या हम लोग जो है स्कूल्स में जब पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कूल्स. द फर्स्ट वन इज द प्राइवेट स्कूल एंड द अनदर वन इज द गवर्नमेंट स्कूल. तो प्राइवेट स्कूल का जब आप देखोगे ना, देन द बुक्स एंड द सिलेबस आर प्रिस्क्राइब्ड पर्सनली बाय द प्राइवेट स्कूल्स. बट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, government prescribes its own syllabus, and once you are going to compare the price of the books which is prescribed in the government schools and which is prescribed in the private school, then there is a big difference. क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में इट इज अ वेरी बिग बिजनेस. जो पब्लिशर्स होते हैं वो ऑथर्स से बुक लिखवाते हैं एंड देन दे अप्रोच टू स्कूल, और स्कूल क्या करता है, स्कूल अप्रूव करता है कि वी आर गोइंग टू अप्रूव दिस बुक फॉर दिस क्लास, और फिर वो हाई रेट्स पे जो है वो बच्चों को बेची जाती हैं. एंड इन द प्राइवेट स्कूल इट इज अ वेरी बिग बिजनेस. So here in this case, Ram Javaya Kapoor, he is basically in a business. And what is his business? Publishing and printing books for schools. स्कूल्स में जो किताबें जो चलती हैं उनकी प्रिंटिंग और पब्लिशिंग और प्रिंटिंग का काम करते हैं. अब इसमें क्या होता है कि पंजाब एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या हुआ, बाद में आना. पंजाब एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या करती है, वो दे हैव डिसाइडेड टू नेशनलाइज the textbook which are used in the schools, and for that purpose nationalize the school books. That is the first thing. They have decided to nationalize the school book, and for that purpose what they have done, they have issued a notification. तो नेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल बुक्स का मतलब क्या हुआ कि ऑन in all the government recognized schools, only the books which are prescribed by the government, that is going to be prescribed in the syllabus. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब्ड बुक्स होती हैं, दे आर ऑब्वियसली मच चीपर इन कंपैरिजन टू द बुक्स ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स. तो धीरे धीरे जो राम जवाया कपूर एंड द रेस्ट ऑफ द प्राइवेट पब्लिशर्स, दे बिकेम आउट ऑफ द बिजनेस. क्योंकि बिजनेस खत्म करने के दो तरीके होते हैं. पहला तरीका ये होता है कि यू आर गोइंग टू स्टॉप एंट्री ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया. And the second thing is you just make the business non-profitable. So once the business became non-profitable, automatically the people will stop involving themselves into such kind of business. तो वो करेंगे ही नहीं. तो यहाँ पे क्या हुआ, सरकारी स्कूलों में जब इनकी किताब लग गई तो इसके कारण, क्योंकि दिस इज द जजमेंट ऑफ द ईयर 1955, so obviously the number of the private school is not very high. तो राम जवाया कपूर जो है वो इनका बिजनेस जो है खत्म होने लगा. And that's why they all decided to approach to the Supreme Court. So what is the ground of approaching to the court in this case? The ground of approaching court in this case is they are claiming that through the nationalization of school books, the Punjab government has basically encroached their fundamental right which is available to them under Article 19(1)(g). 19(1)(g) क्या करता है? 19(1)(g) gives right to every citizen to do any to get involved into any kind of business or occupation. तो ट्रेड बिजनेस ऑक्यूपेशन की जो लिबर्टी है वो इंडिविजुअल्स को दी जाती है अंडर आर्टिकल 19(1)(g). अब मुझे थोड़ा सा ध्यान से समझना, बिकॉज यहाँ से थोड़ी सी टेक्निकलिटी शुरू होती है. जब आप आर्टिकल 19 पढ़ते हो, एज ऑफ नाउ यू हैव नॉट रेड इट, Article 19 is basically going to talk about different kinds of fundamental rights, and the fundamental rights are prescribed from Article 19(1)(a) to 19(1)(g). 19(1)(a) से 19(1)(g) तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं.
19 subclause 2 to 19 subclause 6 talks about the restriction. So the restriction of Article 19(1)(a), which is right to freedom of speech and expression, that is given under Article 19 subclause 2. तो 19(1)(a) का रिस्ट्रिक्शन 19 सब क्लॉज 2 में दिया है, 19(1)(b) का में जो राइट है उसका रिस्ट्रिक्शन 19 सब क्लॉज 3 में दिया है, और ऐसे करके अगर आप चलते चले जाओगे, देन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 19(1)(g हैज बीन गिवन अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6. तो 19 सब क्लॉज 6 में जो है रिस्ट्रिक्शन दिया है. एंड व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन? पहली तो इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है दैट द गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू नेशनलाइज एनीथिंग. और अगर किसी चीज में प्राइवेट्स को अलाउ करना है, देन व्हाट वुड बी द एक्सटेंट? इवन दे कैन प्रिस्क्राइब सर्टेन क्वालिफिकेशंस फॉर सर्टेन काइंड ऑफ बिजनेसेस एंड ऑक्यूपेशंस. तो ये भी ये कर सकते हैं. जैसे स्किल बेस्ड है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्या देखते हैं कि इफ यू आर नॉट अ बायो, इफ यू हैव नॉट टेकन opted biology in 12th, then you cannot appear in the medical examination. Similarly, if you are not a law graduate, you cannot do practice. अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं लिया, then in that circumstances you cannot appear for engineering examination. So what basically the government can do? The government can prescribe certain educational qualification for certain positions. They can nationalize certain sectors, and simultaneously they can allow the entry of private players in certain segments up to the extent they want. जैसे आपने देखा कि अभी आप देखो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जैसे होते हैं या जो पावर प्लांट्स होते हैं, इसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली है. रेलवे गवर्नमेंट की मोनोपोली है. आप अपनी कार तो चला सकते हो, पर कोई कंपनी आगे कहे हम अपनी ट्रेन चलाएंगे, तो दैट इज नॉट अलाउड एज ऑफ नाउ. व्हाई? बिकॉज दैट इज द रेलवेज, द वाटरवेज, एज ऑफ नाउ दे आर एंटायरली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. वो कुछ कुछ चीजों को आउटसोर्स कर सकते हैं कि उन्होंने सफाई कर दी आउटसोर्स या कुछ और चीजें कर दी, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स विच आर गोइंग टू बी operated in the railway sector, that is going to be performed by the government. तो यहाँ पे एक खास बात आप ये याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो, स्पेशली वंस यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स, तो क्या होता है कि एट सर्टेन प्लेसेस द टर्म यूज्ड इज प्रोविजन, and at certain places is fundamental right, the term used is law. जैसे जब आप रिस्ट्रिक्शंस पढ़ोगे, तो रिस्ट्रिक्शन में आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 से आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 तक यू विल गेट अ कंसिस्टेंसी. एंड व्हाट इज द कंसिस्टेंसी? द कंसिस्टेंसी इज फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट which is mentioned from article 19(1)(a) to 19(1)(g, the parliament is allowed to restrict those fundamental rights only through law. तो लॉ में एक चीज आप याद रखिएगा, जब आप लॉ की बात करते हो ना 19(2) to 19 सब क्लॉज 6 में, इसका मतलब ये होता है कि दे कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड विदाउट अ लेजिस्लेशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट. सो अनलेस एंड अनटिल, जैसे आपने देखा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दैट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a. तो इसी में आपका जो राइट टू एक्सप्रेशन होता है, इसी में आपकी मूवीज भी आती हैं, राइट? मूवीज इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ एक्सप्रेशन. लेकिन एक सिनेमेटोग्राफिक एक्ट बना हुआ है. तो सिनेमेटोग्राफिक एक्ट क्या करता है? सिनेमेटोग्राफिक एक्ट में बेसिकली थ्रू द सिनेमेटोग्राफिक एक्ट दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द कंटेंट which the movie makers are going to show to the public through their movies. तो उन्होंने एक सेंसर बोर्ड बना दिया सिनेमेटोग्राफिक एक्ट में. और सेंसर बोर्ड क्या करेगा? द सेंसर बोर्ड विल ग्रांट आइदर यू और a certification करेगा, and simultaneously suppose if they find that any content is not appropriate according to the Indian culture or whatever, then they can also stop the release of that movie in the general public interest. तो इसका मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे सिनेमेटोग्राफिक एक्ट एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है. और वो रिस्ट्रिक्शन कैसे लग रहा है? थ्रू द हाउ दे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट रिस्ट्रिक्शन. They are going to execute that restriction through the censor board. And how the censor board is going to be created? The censor board is going to be created under the cinematographic act. इसी तरीके से जैसे आपने देखा है कि once you are going to talk about like suppose एक बड़ा important होता है कि can we criticize judges,
तो इसमें आपने देखा है कि इट इज वेरी क्लियर दैट यू कैन नॉट क्रिटिसाइज जज बट यू कैन क्रिटिसाइज जजमेंट. तो ये क्लियर है कि इफ यू आर गोइंग टू क्रिटिसाइज जज देन द कोर्ट में इनिशिएट द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, बट इफ यू आर गोइंग टू एनालाइज द जजमेंट क्रिटिकली देन दैट इज परफेक्टली वैलिड. तो ये पावर कहाँ से आई है कि आप जजेस को, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ माई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट आई एम नॉट सपोज टू से एनीथिंग अगेंस्ट एनी जज because the contempt of court act is there. So if I am going to make any kind of contempt, then in that circumstances the contempt of court act comes into the picture, and according to the clauses the court can take action against the person. इसमें बहुत सारी चीजें contempt of court में, civil contempt, criminal contempt, मैं इसमें नहीं जा रही हूँ. मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि the fundamental rights which are given from 19(1)(a) to 19(1)(g) they can be restricted only through law. यहाँ पे इनका क्या कहना है, राम जवाया कपूर इज सेइंग दैट थ्रू द नोटिफिकेशन, रिमेंबर द पंजाब गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन्होंने क्या किया, दे हैव नेशनलाइज्ड स्कूल एजुकेशन बुक्स, नेशनलाइज कर दिया, एंड दे हैव डन इट थ्रू अ नोटिफिकेशन. ठीक, what is the allegation of the petitioner in this case? The allegation of the petitioner of this case is, through this notification the Punjab government is infringing their right, their fundamental right which is available to them under article 19(1)(g) जो कि है the fundamental right of trade, occupation और business, उसको ये infringe कर रहा है. तो वो क्या कह रहे हैं, what they are trying to say, they are trying to say that as per article 19 subclause 6 the fundamental right which is available to them under article 19(1)(g) can be restricted only through law, means through a proper legislation. But here in this case the government of Punjab is trying to curtail or trying to infringe their fundamental right through a notification. तो नोटिफिकेशन से नहीं कर सकते, लॉ बनाया नहीं है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट के रिस्ट्रिक्शन जो 19 सब क्लॉज 6 में दिया है उसके हिसाब से द गवर्नमेंट कैन नेशनलाइज एनी सेक्टर, एंड नेशनलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर मींस नाउ दे आर गोइंग टू स्टॉप एंट्री ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स. तो उन्होंने बोला कि व्हाट इज द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर, द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर इज बिकॉज ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट नाउ दिस बिजनेस इज ओवर फॉर देम. So the government has curtailed their fundamental right, but this curtailment has been done through a notification and not through appropriate legislation. So this notification is unconstitutional because the way through which this fundamental right has been restricted, that method is basically unconstitutional. तो fundamental right जो 19(1)(g) में दिया हुआ है, अगर आप उसको restrict करना भी चाहते हो, then you will have to do it through a proper legislation and not through a notification. तो नोटिफिकेशन के केस में एक चीज आप याद रखिएगा, जब मैं आप लोग को 13(3) पढ़ा रही थी, if you have remember, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि once you are going to deal with what term law includes, तो वहां पे नोटिफिकेशन टर्म भी दिया हुआ है, वहां पे ऑर्डिनेंस भी दिया हुआ है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर. बट once you are going to talk about article 19 subclause 2 to 19 subclause 6 which is dealing with the restriction, the restrictions can be imposed only through the proper legislation as per article 19 subclause 2 to 19 subclause 6. वहीं पे जैसे आप देखोगे ना, जब आप आर्टिकल 15 देखते हो तो 15(3) अगर आप देखो या 15(4) देखो तो उसमें क्या क्या मेंशन्ड है, द टर्म यूज्ड इज प्रोविजन, लाइक द गवर्नमेंट can make certain things in the favor of women and children through a provision. तो एक चीज आप याद रखिएगा, जहां पे टर्म प्रोविजन यूज है वहां पे besides proper legislation these rights can be granted through some other ways also. जैसे मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से दे दिया या किसी आपको नोटिफिकेशन से दे दिया, that is quite possible. But wherever the term used is law, it means there should be a proper legislation. So in the case of restriction from article 19 subclause 2 to 19 subclause 6, term used is law. So here the main contention of the petitioner is the way through which the Punjab government has tried to curtail their fundamental right, that is unconstitutional because through notification their fundamental rights cannot be breached. एक इनका आर्ग्यूमेंट ये है. दूसरा इनका आर्ग्यूमेंट क्या है, द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज द गवर्नमेंट कैन नॉट डू बिजनेस.
So if the government is going to operate in the area of selling books, so it is a kind of business. बिजनेस कैसे है? बिजनेस ऐसे है कि भले सस्ते दाम पे सरकार किताबें बेच रही है, पर वो किताबें बेच रही है, तो बेचने का मतलब क्या है? दे आर गोइंग टू सेल समथिंग to the students, and in the exchange of that they are going to get money. So what is the second objection of the petitioner in this case? The second of the objection of the petitioner in this case is the government cannot do business. सरकार बिजनेस नहीं कर सकती है, and because the government is doing business, so here in this case this notification or this method of nationalization of the school books, that is again unconstitutional. तो पहला सवाल यहाँ पे देखिए, दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि वेदर द गवर्नमेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस और नॉट. दैट इज द वन क्वेश्चन. एंड द सेकंड थिंग इज, वंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the curtailment of fundamental right through notification, that is permissible under article 19 subclause 6 or not. तो इसके लिए पहली बात ये जानना जरूरी है कि जिस चीज को petitioner अपना fundamental right बता रहे हैं, whether that is a fundamental right or not, that is the first question. And the second question is, obviously if that is not a fundamental right, so if the government is trying to control it through the notification, there is no problem. But if that is a fundamental right, then through the notification, whether that can be restricted or not, that is the second important question. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? The Supreme Court has gone, why this judgment is very much important, because in this case for the first time the Supreme Court has tried to define the meaning of executive power. सबसे पहले इसमें executive power को define करने की कोशिश की गई है. That is the first thing. And the second important thing here in this case is the Supreme Court has tried to decide that whether the claim which has been made by the petitioner in this particular case, that their fundamental right has been violated, actually their fundamental right has been violated or not. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देयर इज वन आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज आर्टिकल 298, एंड एक्सप्रेसली इट गिव्स परमिशन टू गेट इन्वॉल्व into different kind of business activities. It gives permission to the state to get involved itself into different kind of business activities. और उसका एक रीजन भी है. रीजन इसमें क्या होता है, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, मैंने काफी सारी चीजें आपको बताई थी. इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू जनरेट द रेवेन्यू. बिकॉज वी नो दैट द गवर्नमेंट हैज अ लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर. बहुत सारे खर्चे होते हैं सरकार के. सरकार बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाती है. देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ अर्निंग? सो ऑब्वियसली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर द गवर्नमेंट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, अभी तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ गया आपका, बट द गवर्नमेंट, a very important source of earning for the government is direct and indirect sources. And the second important thing through which the government collects revenue, that is the business and simultaneously ऑक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज या बिडिंग फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे आपने देखा सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है. कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे जो है सरकार कोल माइंस की बिडिंग करती है. इन तरीकों से भी सरकार रेवेन्यू जनरेट करती है. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका जो मैंने आपको बताया कि सरकार बिजनेस एक्टिविटी भी कर सकती है. जैसे अगर वो आपको बिजली दे रही है तो आपसे कहेगी आप बिजली का बिल पे करोगे. अगर आपको पेट्रोल दे रही है या कोई और सर्विस अगर आपको दे रही है, मान लीजिए रेलवे है या बस है या जो भी है, अगर आप उसको यूज करोगे तो आप टिकट खरीदोगे और उसके बदले में वो पैसा आप सरकार को दोगे. सो इफ द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू अर्न, हाउ दे विल स्पेंड द मनी? So Article 298 permits government, whether the central or the state government, to get involved themselves into different kind of commercial or business activities. तो सरकार ये कर सकती है. तो इनका जो पहला आर्ग्यूमेंट था जिसमें कि कह रहे हैं that the government is not allowed to do business, that was not accepted by the Supreme Court, and the Supreme Court has said that the government can do business as per Article 298 of the Indian Constitution. एक चीज तो ये हो गई इसमें. दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक चीज आप याद रखना, जब आप आगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ोगे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है. और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि एक तो होती है लेजिस्लेटिव पावर और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव पावर. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर,
though it is not as much strict as it is in the case of American Constitution. उतना strict नहीं है, but हाँ यहाँ पे doctrine of separation of power apply होती है. So the doctrine of separation of power मतलब कौन कौन सी powers हो गई? So basically the separation of power among legislature, executive and judiciary. So what is the next important case, which is very much important? If I am going to ask you a question, what do you mean by executive power? So sometimes it becomes extremely difficult to define that what is the meaning of executive power. इसका मैं एक simple सा example अभी लेती हूँ, because very recently we have passed through a very tough phase, and that was the phase of COVID crisis. राइट अब कोविड क्राइसिस आया, तो कोविड क्राइसिस में सरकार ने क्या बोल दिया? सरकार ने बोला कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं. अब यहाँ पे सवाल ये आता था, क्योंकि मैंने देखा कई लोगों ने सवाल उठाया कि हाउ द गवर्नमेंट कैन इम्पोज लॉकडाउन ऑन द पीपल ऑफ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वेयर दे आर गोइंग टू कर्टेल देयर फ्रीडम. तो कौन से लॉ के तहत जो है ये लॉकडाउन लगा रहे हैं? तो मान लीजिए अब तो क्लियर है कि देयर इज अ लेजिस्लेशन, एंड द लेजिस्लेशन इज आपका ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी, the epidemic act and the disaster management act both gives this kind of right to the government to impose restrictions on the movement of the people. यानी कि वो एक तरीके से लॉकडाउन लगा सकते हैं. लेकिन मान लो कि ये दोनों लेजिस्लेशन ना होते, क्या उस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा सकती थी क्या? तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसीलिए मैंने कई बार आपको समझाया कि लॉ में सबसे पहले कॉमन सेंस चलता है और उसके बाद कुछ और चलता है. अब अगर हम ये कहें कि नहीं एपिडेमिक आ गई या पैंडेमिक आ गई और देयर इज नो कॉरेस्पॉन्डिंग लेजिस्लेशन, देन फर्स्टली द गवर्नमेंट विल कॉल both session of the parliament and they will pass a bill, and through that bill they are going to take power to impose COVID restrictions, and they will impose restriction. So it is going to be a very time consuming process. तो इतने में तो लाखों करोड़ों लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे. तो इसीलिए क्या किया जाता है, द गवर्नमेंट ऑलवेज हैव सर्टेन काइंड ऑफ पावर which is known as their executive power, and that is also sometimes called as the power of the government of different kind of policy making. जैसे मान लीजिए आपका राइट टू फूड अब एक स्टैट्यूटरी स्टेटस है राइट टू फूड का, पर जब राइट टू फूड नहीं था तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो सबको खाना प्रोवाइड करे? हमें मालूम है कि देयर इज अ पीडीएस स्कीम. तो वहां पे क्या है कि टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स a legislation is not necessarily required. So what is the difference between a policy and a legislation? Policy issuance or the executive power of the government is a very broad concept for which the government is not necessarily dependent upon the existence of a particular legislation. तो इसी केस में, इस केस की सबसे खास बात यह है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने for the first time they have tried to define that what is the meaning of executive power. तो इसमें एक चीज आप याद रखना, जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, then what happens in most of the cases, what is happening whenever we are going to talk about the governance, हमको लगता है that is only the responsibility of the government. But remember, once you are going to talk about the governance, the model of the governance is very broad, where not only the role of the government is important, role of the executive is important, but the role of legislature and judiciary is equally important, because they all are the part of the good governance. तो जुडिशरी का भी, जिसे जुडिशियल गवर्नेंस कहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और एक मैंने आपको बताया था जिसको कभी कंसीडर ही नहीं किया जाता, बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द रोल ऑफ द सिटीजन इन गुड गवर्नेंस. बट दैट इज नॉट अंडर कंसिडरेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिटीजन्स के ऊपर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसी नहीं है जिसको कि उनके ऊपर इम्पोज किया जाए. सो दैट इज अप टू यू दैट वेदर यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर ड्यूटीज और नॉट. बट यस, there are certain sets of obligations which are mandatory for the legislature, for the executive and for the judiciary. So in this case, what Supreme Court has done, the Supreme Court has tried to define the meaning of executive power. तो कैसे define किया? देखिए, judicial power is easy to define. How it is easy to define? It is easy to define that we know that when a matter has been brought before the Supreme Court for the purpose of the interpretation of the Constitution, or suppose if any dispute arises between the parties, one party may be state also sometime, then in that circumstances, the role of the judiciary is to protect the constitutionalism
or to protect the spirit of the constitution or to protect the spirit of any other legislation. तो दूसरों के मतलब लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करना, that is the role of the judiciary. And wherever any confusion, wherever any confusion regarding the interpretation of the legislation, then that thing is also done by the judiciary. तो judiciary का काम जो है आपको समझ में आ गया कि कोई मैटर अगर कोर्ट के पास चला गया, then that became the part of the judicial governance. The second important thing is the legislature. तो legislature में भी there is no problem, because the meaning of the legislature means those who are going to legislate. Right? So the purpose of the legislature is to legislate. Then what is the meaning of the executive? So what Supreme Court has said in this case, the Supreme Court has said in this case that in the overall, overall structure of the governance, you just remove the role of the judiciary and you just remove the role of the legislature. Whatever is left, that is the role of the executive. यानी जो लेजिस्लेचर का एक प्रिसाइज रोल है उसको आप अलग कर दो, जो जुडिशरी का प्रिसाइज रोल है उसको आप अलग कर दो, जो कुछ भी अब बचेगा वो आपकी एग्जीक्यूटिव पावर मानी जाएगी. तो एग्जीक्यूटिव पावर में इन्होंने दे हैव गिवन सर्टेन एग्जांपल्स लाइक पॉलिसी मेकिंग इज एन एग्जीक्यूटिव पावर, इनिशिएशन ऑफ लेजिस्लेशन इज एन एग्जीक्यूटिव पावर, maintenance of law and order, that is an executive power, initiation of foreign policy, that is a legislative power. But these are certain examples. Beside this, all these things, the power of the executive is very broad. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, and you should be very clear about that, that within the limit of the constitution and within the limit of the rest of the existing legislation, the executive is allowed to do anything. They are allowed to do any kind of function which is in the general public interest, which is in the national interest. They are allowed to make any kind of policies. They are allowed to issue any kind of executive order or any kind of notification also. They can do everything. There is only one rider, and the rider is the parameters of the constitution and the parameters of the rest of the legislation. So they cannot take any additional power which is not guaranteed to them through the constitution or through any other legislation. For that purpose they need to amend the constitution, but within the ambit of the constitution and within the ambit of the existing legislation they can make any policy, and that is the executive power of the state. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप और समझ लीजिएगा कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला, और अगर सरकार पॉलिसी से सब कुछ कर सकती है तो फिर वो लेजिस्लेशन बनाती क्यों है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो इसमें आप आओगे जब आप पढ़ते हो आर्टिकल 73 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल 73 इज टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल स्टेट्स के केस में जाता है दैट इज आर्टिकल 154. तो इसमें आप एक चीज देखोगे, ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट और द यूनियन इज को एक्सटेंसिव. मेरी बात को ध्यान से समझना. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट इज को एक्सटेंसिव विद द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर. इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव पावर वहां तक एक्सटेंडेड है जहां तक लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन बना सकता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिन भी टॉपिक्स पे लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन बना सकता है उन सारे के सारे टॉपिक्स पे एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है. तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो एक तरीके से ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव सब कुछ कर सकता है जो लेजिस्लेचर कर सकता है, तो एग्जीक्यूटिव को क्या लेजिस्लेचर की जरूरत ही नहीं है. तो इसको आप इस तरीके से समझ लेना कि हमारे यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. जो एग्जीक्यूटिव है ना वो लेजिस्लेचर का पार्ट है. जैसे आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो किसी ना किसी हाउस के मेंबर होते हैं. दे मे बी द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, दे मे बी द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, बट डेफिनेटली दे आर द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. सो दे आर द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एज वेल एज दे आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि besides the procedure of amending the constitution to pass a bill, only simple majority is required in both the houses.
तो बिल पास करने के लिए जो आपको मेजोरिटी चाहिए वो चाहिए सिंपल। सिंपल का मतलब होता है 50% प्लस वन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। 50% प्लस वन आपको चाहिए होती है बिल पास कराने के लिए। और सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए होती है? सरकार को, किसी पार्टी को बहुमत मिल गया, ये कब डिसाइड होता है? जब उसके पास टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उस हाउस में, उसकी 50% लोकसभा में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लोकसभा में और स्टेट गवर्नमेंट के लिए विधानसभा में, टोटल नंबर ऑफ सीट्स के जब 50% प्लस वन आपको वोट मिल जाते हैं या सीट्स आप जीत लेते हो, तब फिर आप गवर्नमेंट फॉर्म करने की स्थिति में आ जाते हो। इट मींस दिस इज द मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इसका एक मतलब क्या हुआ? द नंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड द नंबर रिक्वायर्ड टू पास अ लेजिस्लेशन, बोथ आर सेम। सरकार बनाने के लिए 50% वन प्लस वन और बिल को पास करने के लिए 50% प्लस वन। तो सरकार में इसीलिए है क्योंकि उसके पास 50% प्लस वन मेजोरिटी है एटलीस्ट। अगर उसके नीचे चली जाती है, then we have seen what happens in that circumstances. In that circumstances, the opposition may introduce a bill which is known in the form of no confidence motion. तो जैसे मैंने आपको एसआर बोम्मई के केस में बताया था कि बोम्मई साहब कह रहे हैं कि मेरी मेजोरिटी है, लेकिन गवर्नर ने रिकमेंड कर दिया कि इनकी मेजोरिटी नहीं है। तो वो चीज जो है फ्लोर पे होना चाहिए, वो राजभवन में नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा कि इफ द गवर्नमेंट, और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, नॉर्मली आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में जानते हैं, एक और चीज होती है विच इज नोन एज कॉन्फिडेंस मोशन। सो कॉन्फिडेंस का मतलब, मोशन का मतलब क्या होता है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑपोजिशन इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार अपोजिशन जो है बिल लेकर, अपोजिशन जो है प्रपोजल लेकर के आई दैट द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजोरिटी, और अगर वो पास नहीं हुआ तो सरकार बच गई और पास हो गया तो सरकार गिर गई। इसी तरीके से क्या होता है, सरकार कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आती है जिसमें वो ये प्रूव करती है कि हमारे पास बहुमत है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जितना नंबर चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए, मिनिमम नंबर, उतना ही, यानी 50% प्लस वन ऑफ द एंटायर नंबर ऑफ द हाउस, उतना ही चाहिए होता है कोई बिल पास कराने के लिए, 50% प्लस वन ऑफ द ऑल द मेंबर्स ऑफ द एंटायर हाउस। तो अगर इसका मतलब ये है कि जो भी सरकार में है उसके पास हमेशा इतनी संख्या है कि वो बिल को आराम से पास करा सकता है लोकसभा में, राइट। और मैंने आपको क्या बताया था कि राज्यसभा में जब बिल जाता है, देन मेनी टाइम्स द गवर्नमेंट, बिकॉज राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, so many times the government which is in the majority, obviously in the lok sabha, they are in the minority in rajya sabha। वहां पे उनका बहुमत नहीं है। जैसे आपने इस सरकार को देखा जो मोदी 1.0 थी, इनका लोकसभा में बहुमत तो था लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तो इनके बिल अटक रहे थे। तो इनके पास एक ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन ये होता है, देखिए, बिकॉज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड and the member of Rajya Sabha are indirectly elected, though that is a permanent house. But if the Rajya Sabha is able to control Lok Sabha, then in that circumstances, those who are going to be elected indirectly, they are going to regulate them, those who are going to be elected directly by the people of India. So that is, in a way that is against the democratic principle. इसीलिए नंबर में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? राज्यसभा जो है वो लोकसभा के लगभग आधी है संख्या में। तो इसमें क्या होता है, देन व्हाट ऑप्शन इज लेफ्ट विद द गवर्नमेंट। हालांकि मैं आपको बताऊंगी हर स्थिति में नहीं होता। देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस द गवर्नमेंट में इनवाइट और कॉल ज्वाइंट सेशन और ज्वाइंट सेटिंग। तो ज्वाइंट सेटिंग में क्या होता है, जो कि लोकसभा की संख्या राज्यसभा से डबल है, तो बिल पास हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट अगर पावर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, देन ऑब्वियसली दे कैन पास एनी बिल। तो यहाँ पे क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि द गवर्नमेंट डज नॉट नीड द सपोर्ट और अपोजिशन ऑफ द अपोजिट पार्टी, क्योंकि उनके पास उतनी संख्या है जहां पे वो बिल पास करा ले जाते हैं। लेकिन इसमें इशू क्या आता है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि फिर लेजिस्लेचर की कोई जरूरत ही नहीं होती या अपोजिशन की कोई जरूरत ही नहीं होती है? तो इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, द अपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। हम क्यों हेल्दी डेमोक्रेसी है? क्योंकि आजकल तो समय चला गया जब बड़ी कॉन्स्ट्रक्टिव डिबेट्स हुआ करती थी, बट कभी बड़ी कॉन्स्ट्रक्टिव डिबेट्स होती थी। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द अपोजिशन फॉर द गवर्नमेंट? अपोजिशन कंट्रोल्स द गवर्नमेंट फ्रॉम बीइंग arbitrary, and simultaneously sometimes they give
very good suggestions to improve the quality of a particular bill also. तो डिस्कशन इसलिए किया जाता है, द रोल ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू डिस्कस द बिल विच द गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रपोज। और ऑब्वियसली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है तो बिल तो सरकार पास करा ले जाती है, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती। राज्यसभा में अटके तो अटके, लोकसभा में रेयरली होता है, क्यों अटकता है, और राज्यसभा में भी अटकता है तो वो ज्वाइंट सीटिंग बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वाई द अपोजिशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज द मेंबर ऑफ अपोजिशन दे आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री, so they are also representing the will of the people. Maybe the number is less, so the purpose of opposition is a healthy debate and discussion over a bill which is going to be produced before the house, या देश में जो समस्याएं हैं उस पर बहस करके सरकार को बताना या सरकार के ऊपर दबाव बनाना कि आप ये चीजें करो। तो ये दिस इज द सिंपल रोल ऑफ द अपोजिशन। अदरवाइज द रूलिंग पार्टी डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ अपोजिशन वंस दे आर गोइंग टू पास अ बिल। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर की कोई जरूरत ही नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव वो सब कुछ क्योंकि कर सकता है जो कि लेजिस्लेचर कर सकता है, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 73 and 154 which says that the power of the state executive or the central executive is the co-extensive to the law making power of the parliament or the state legislature। फिर सवाल ये आता है कि फिर सरकारें बिल पास करती क्यों है, जैसे मैंने आपको या लॉ लाती क्यों है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब राइट टू फूड नहीं था, देन टू दिस वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट एनी पर्सन शुड नॉट बी डाइड ऑफ स्टारवेशन, ये सरकार की जिम्मेदारी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं था, देन टू इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ करप्शन इन द गवर्नमेंट मशीनरी। तो ये वो पॉलिसी बना के भी कर सकते थे, बट व्हाई द गवर्नमेंट इज इंटेंडेड टू इंट्रोड्यूस बिल्स इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज रिमेंबर बिल once it is going to be converted in the form of the act, that gives a certainty to the rights of the citizen of this country। क्योंकि पॉलिसी को तो आप कभी भी चेंज कर देते हो, पर जब वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो ये एक सर्टेनिटी हो जाती है, क्योंकि अब वो अगर अमेंड होगा तो पार्लियामेंट अमेंड करेगी, उसमें डिस्कशन होगा, और आपके पास एक अथॉरिटी क्या हो जाती है कि इफ योर राइट इज गोइंग टू बी वायलेटेड, देन विद मोर सर्टेनिटी यू कैन चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दैट लेजिस्लेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और यू कैन चैलेंज द वायलेशन ऑफ योर राइट ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टैट्यूटरी राइट बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो सर्टेनिटी देने के लिए जो है ये पॉलिसीज को बिल में कन्वर्ट करते हैं, और उसका एक फायदा ये होता है कि ड्यूरिंग द इलेक्शंस एज यू हैव सीन कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी पीठ थपथपाती हैं एंड दे गो बिफोर द पीपल, और वो कहती हैं कि हमने आपको ये राइट दिया, वो राइट दिया, वो राइट दिया। इन द केस ऑफ पॉलिसी इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू क्लेम इट, but once they are going to give the shape of the legislation, then in that circumstances it is going to be much easier। इसीलिए सरकार क्या कहती है, because in the democracy the government is elected by the people, तो वो पॉलिसीज अगर कोई अच्छी होती हैं तो उसको वो स्टैट्यूटरी स्टेटस दे देते हैं, और स्टैट्यूटरी स्टेटस देने का मतलब होता है they are going to give more certainty। So in this case remember the court has defined the power of the executive, and the meaning of the executive power means overall governance का जो role है, just minus the power of the judiciary and the power of the legislature, whatever is left that is known as the executive power। So in the while exercising their executive power, they can make bylaws, rules, regulations, notifications, even the president and the governor, they can also issue ordinances। So ordinance जो होता है that is known as the legislative power of the executive, वो भी वो कर सकते हैं। They cannot do only one thing, they cannot not make a proper legislation। So what is the allegation of the petitioner in this case? Allegation ये है कि जो हमारा fundamental right को curtail किया, right to business को, उसको इन्होंने विदाउट लॉ किया है थ्रू अ नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे पहली चीज तो द सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक यू अंडरस्टूड, लास्ट में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट थिंग द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइड द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द गवर्नमेंट कैन डू बिजनेस और नॉट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस केस में ये बात, इसमें भी एक चीज देखिएगा कि सरकार कैसे बजट पास कराती है। तो इसमें आप देखोगे तो हर एक क्या बोलते हैं, जो डिपार्टमेंट होता है उसका जो टेंटेटिव एक्सपेंडिचर होता है उसकी डिमांड वो गवर्नमेंट से रेज करता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इसमें डिमांड ऑफ ग्रांट के रूप में इसको लेजिस्लेचर से पास कराती है। तो जब ये डिमांड ऑफ ग्रांट के रूप में पार्लियामेंट इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, पार्लियामेंट में ऑल्सो डिनाई इट।
So one, this demand of grant has been passed by the legislature. तो उसके बाद क्या करती है सरकार, अप्रोप्रिएशन बिल ले आती है, और अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू ये पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाता है, जहां से एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट सेगमेंट द फाइनेंस मिनिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट मनी टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. वो एलोकेट करती है कितना 500 करोड़ तुम्हारे गए, 1000 करोड़ इस मिनिस्ट्री इस डिपार्टमेंट को गए, 500 करोड़ उसको गए, वो एलोकेट करते हैं. तो इसमें क्या करती है सरकार, बताती है कि उसने किस किस चीज के लिए कितना कितना पैसा रखा हुआ है. राइट. तो यहाँ पे जब हम अप्रोप्रिएशन बिल की बात करते हैं तो यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ द नेशनलाइजेशन ऑफ बुक, हियर इन दिस केस द पंजाब गवर्नमेंट हैज पास्ड एन अप्रोप्रिएशन बिल. यानी उसमें उन्होंने एक लमसम अमाउंट रखा हुआ है कि बुक्स को नेशनलाइज कराने में हम इतना पैसा खर्चा करेंगे. तो इतना पैसा जो सरकार खर्च करती है वो क्यों करती है, क्योंकि इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि बीइंग द वेलफेयर स्टेट, गवर्नमेंट गिव्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सिडीज टू इट्स सिटीजन. ऐसे मान लो अगर किसी रूट पे सरकारी बस चल रही है तो प्राइवेट बस उस रेट पे नहीं चल सकती. क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि सरकार बहुत हद तक सब्सिडी देती है जो कि प्राइवेट प्लेयर नहीं दे सकते. जैसे ही वो उस रेट पे आएंगे, देयर बिजनेस इज गोइंग टू बी नॉन प्रॉफिटेबल, सो दे कैन नॉट कॉम्पीट विद द गवर्नमेंट. दैट इज अ प्रॉब्लम. सो यहाँ पे जब आप नेशनलाइजेशन कर दोगे बुक्स का, तो जो नेशनलाइज बुक है दे विल बी अवेलेबल एट अ मच मच चीपर रेट in comparison to the books which are going to be sold by the private players. तो जो private players होते हैं वो compete नहीं कर पाते, तो अपने आप वो बाहर हो जाते हैं. तो यहाँ पे ये बात सच है कि सरकार ने अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू पैसा निकाला है और उसको वो लगाएगी नेशनलाइजेशन ऑफ बुक्स के लिए. तो यहाँ पे सरकार बिजनेस करने जा रही है, बट बिजनेस में भी क्या है, दैट इज फॉर द good of the people, and the Supreme Court has said that Article 298 permits government to get involved itself into different kind of business activities. तो वो ऐसा कर सकते हैं. अब इसमें तीसरा सवाल आता है. तो पहली चीज तो ये हो गई एग्जीक्यूटिव पावर डिफाइंड हो गई. दूसरा ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि गवर्नमेंट बिजनेस कर सकती है. अब तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि द पिटिशनर इज क्लेमिंग that his fundamental right has been violated through a notification. तो जिस fundamental right को एक claim कर रहे हैं कि that is my fundamental right, whether that is a fundamental right of the petitioner of not or not, that is a very important thing. So here you should understand that what basically the government is going to do. Government कैसे जब nationalize कर रही है तो इसका क्या मतलब होता है. इसके दो मतलब होते हैं. पहला इसमें क्या होता है कि सरकार ने पब्लिशर्स को बुलाया, ऑथर्स को बुलाया और उनसे कहा कि आप जो है अपना जो आपका कंटेंट है वो हमें दो. यानी जो बुक्स आप ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इस पे या तो आप बुक लिख के दो, या अगर चल रही है तो हमें लाओ कि आप कौन सी बुक प्रपोज कर रहे हो. दैट इज द फर्स्ट थिंग. दूसरा इसमें क्या करते हैं, ये पब्लिशर और ऑथर्स को जब बुलाते हैं टू सबमिट देयर बुक्स, तो वो क्या होती है कि वंस दैट हैज बीन अप्रूव्ड, दैट इज अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको अप्रूव करती है. तो इसमें कई बार क्या करती है कि सरकार जो प्रिंटिंग होती है ना वो आउटसोर्स कर देती है, और पैसा जो है वो पब्लिशर और प्रिंटर को सरकार खुद देती है, और वही किताबें जो छपती हैं वो सब्सिडाइज्ड रेट पे जाती हैं स्टूडेंट्स को. तो सरकार कई बार कॉपीराइट खरीद करके अपनी प्रिंटिंग प्रेस में उसको छापती है, और कई बार पब्लिशर और प्रिंटर को वो आउटसोर्स कर देती है कि आप जो है हमारे बिहाफ पे इसको छापोगे और छाप करके आप इसको मार्केट में लाओगे, और जिस रेट पे हम कहेंगे उस रेट पे ये स्कूलों में बिकेगी. तो स्टूडेंट तक तो पहुंची सस्ते रेट पे, लेकिन सरकार ने पब्लिशर को दिया ज्यादा पैसा. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट जब गवर्नमेंट ये कह रही है द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इनवाइट द पब्लिशर्स टू प्रेजेंट देयर कंटेंट बिफोर द गवर्नमेंट, तो उस कैटेगरी में राम जवाया कपूर जिस पब्लिशिंग हाउस को चला रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दैट. तो राम जवाया कपूर भी अपनी बुक को लेकर के जा सकते हैं. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि वंस द पब्लिशर हैज पब्लिश्ड सर्टेन बुक्स, he cannot claim that mandatorily these books should be prescribed in the syllabus of any school. जैसे मान लो मैंने किताब लिखी, अब मैं तुमसे कहूं कि मैंने लिखी है तो तुम यही किताब पढ़ोगे. लिखना मेरा राइट हो सकता है, लेकिन पढ़ना या ना पढ़ना आपका राइट है. आई कैन नॉट फोर्स यू कि मैंने लिख दिया तो आप ही पढ़ो.
I can pursue you, I can convince you, but I cannot force you. So similarly what Supreme Court is saying in this case, the Supreme Court is saying कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो सरकार से अलग अलग तरीके की सब्सिडी लेते हैं. गवर्नमेंट स्कूल सरकार के नियंत्रण में होता है, वहां पे क्या किताबें चलेंगी क्या किताबें नहीं चलेंगी, बिकॉज दे आर द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट स्कूल्स, दैट इज इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है. But through this notification, the state government is not going to interfere in the area of the private schools. प्राइवेट स्कूल को इन्होंने टच नहीं किया. नेशनलाइज जो बुक्स को इन्होंने नेशनलाइज करी हैं सरकारी स्कूलों की करी हैं. तो जो पब्लिशर हैं मीन जो राम जवाया कपूर हैं, इनके लिए प्राइवेट स्कूल्स का ऑप्शन खुला हुआ है. ये वहां जा सकते हैं एंड दे कैन कन्विंस द प्राइवेट स्कूल कि आप हमारी बुक अपने आप पे अप्लाई करो. इन द केस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, व्हेन द गवर्नमेंट इनवाइट्स प्राइवेट पब्लिशर टू कम अप विद द कंटेंट ऑफ देयर बुक, वो सरकार को भी अप्रोच कर सकते हैं और सरकार को अगर अच्छा लगेगा तो इनकी बुक को चलाएगी, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं चलाएगी. बट इट डजंट मीन दैट इफ वंस द पब्लिशर हैज पब्लिश्ड समथिंग देन इट बिकेम कंपल्सरी फॉर द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट दैट बुक. तो इन्होंने बोला कि आपके ऊपर फिर सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगाया ही नहीं है, क्योंकि सरकार आपसे कह रही है, सरकार ने आपको ना तो पब्लिशिंग से मना किया ना प्रिंटिंग से मना किया. सरकार आपसे क्या कह रही है, सरकार ने अपने स्कूलों की किताब को नेशनलाइज किया है. सो स्टिल द प्राइवेट स्कूल्स आर ओपन फॉर यू एंड इवन इफ यू वांट दैट योर बुक शुड बी कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट स्कूल, आप वहां जाकर के उनके सामने रख सकते हो. अगर सरकार एग्री होगी तो एक्सेप्ट करेगी, नहीं एग्री होगी देन यू कैन नॉट फोर्स गवर्नमेंट टू अप्लाई देयर बुक्स, अप्लाई योर बुक. तो जिस राइट को आप फंडामेंटल कह रहे हो, एक्चुअल में फंडामेंटल है ही नहीं, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि अगर हमने किताब पब्लिश करी तो किताब हर हालत में चले. तो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कहां हुआ? बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप यू, एंड वंस द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप यू देयर इज नो वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट. एंड वंस देयर इज नो वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट, जब वायलेशन हुआ ही नहीं तो फिर ये सवाल ही नहीं आता कि वायलेशन कैसे किया गया है. तो नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शन को परफॉर्म किया है, through which they are not trying to curtail the fundamental rights of the publisher, but they are just trying to serve the interest of the students who are the part of the government school, ताकि उनको किताबें सस्ती दरों पे मिले. तो नोटिफिकेशन से जो इन्होंने किया है, दैट इज बेसिकली द गवर्नमेंट हैज एक्सरसाइज्ड देयर एग्जीक्यूटिव पावर, बिकॉज हियर इन दिस केस देयर इज नो वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द petitioner. So it doesn't matter that it has been done through a notification or through a proper legislation. Still many options are open for the petitioner and the government is not going to restrict them from publishing and printing their books. तो इनके fundamental right का violation हुआ ही नहीं है, और जब fundamental right का violation हुआ ही नहीं है then it doesn't matter that how basically through a notification or through the legislation the government is going to do that. So that is the case of Ram Jawaya Kapoor. So I think now it is clear to all of you. If you have any question, you may ask. Otherwise, I will quickly finish two more cases. The first one is the Kuldeep Nair case, and the second one is the state of Haryana versus the state of Punjab. तो मैं ये दोनों खत्म कर दूं केसेस, फिर आप लोग पूछोगे या कुछ पूछना है आप लोगों को, बताओ. मैम आई हैव सम डाउट्स मैम. हाँ पूछो. मैम इन दिस केस दे आर टॉकिंग अबाउट ma'am, in this case they are talking about nationalization of textbooks. So it does not mean that they are talking about nationalization of like publishing industry, na? These two things are different. So what does they actually mean? Does it mean imparting nationalized education or some kind of thing? नेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल बुक्स का मतलब हुआ कि स्कूल में जो किताबें होंगी ना वो किस दाम पे बिकेंगी, उसमें कौन सा कंटेंट जाएगा, ये सारी चीजें अब सरकार डिसाइड करेगी. पहले जैसे स्कूल में क्या होता है ना, जैसे मान लो मैं एक पब्लिशिंग हाउस, जैसा आप लोगों ने देखा होगा जो प्राइवेट पब्लिशर्स होते हैं ना, देखना जब आप स्कूल का सेशन शुरू होता है तो वो स्कूल में दौड़ते हैं और वो प्रिंसिपल को कन्विंस करते हैं कि आप हमारी बुक चला दो, आप हमारी बुक चला दो. तो क्या होता है कि इन अ वे देयर इज आल्सो एन एक्सेस वर्क्स, जहाँ पे औने पौने दाम पे ऊंचे दामों पे किताबें बेची जाती हैं और प्राइवेट स्कूल उनको लगा देते हैं. बट जब वो नेशनलाइज हो जाता है तो इसका मतलब नाउ एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. पब्लिशर कौन होगा ये सरकार डिसाइड करेगी, कंटेंट क्या होगा ये सरकार डिसाइड करेगी, और वो किस रेट पे बच्चों को जाएगी ये भी सरकार डिसाइड करेगी. यू गॉट योर आंसर? Yes ma'am. Ma'am, one more question from article 73 ma'am. Article 73. हाँ.
So, ma'am, in Article 73, we have this provision, ma'am, that executive power referred in subclause A wala. So, ma'am,